Hello and welcome to RP classes. In our today's lecture, we are going to solve the exercise problems of objective mathematics, Chapter 1, chapter number 13, permutations and combinations. Okay? तो और इसके जो नोट्स है उसका लिंक दिया हुआ है वीडियो के अंदर, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं. So let us start with the first question. Question number 1 there. Exercise problems, page number 13.41 है. उसमें एक्सरसाइज 30 क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे क्या दिया है. द वैल्यू ऑफ सिग्मा r goes from 1 to n of npr upon r factorial is. Now let us first understand what is npr upon r factorial. npr, well, npr is equal to n factorial upon n minus r factorial. Correct? When I divide this by r factorial, ये हो जाएगा r factorial. No, that is nothing but what is this in totality? ये है क्या है ये? NCR. Okay? This is NCR. Okay? So यहाँ पे this is equal to NCR. So this is nothing but sigma r goes from 1 to n of NCR. तो NCR मतलब NCR का मतलब है this is nothing but पहले NC1 होगा, फिर NC2 होगा, फिर NC3 होगा, डॉट 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 NCN तक चला जाएगा. अब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है जो तुमने देखा है, पता है वो फॉर्मूला है NC0 plus NC1 plus NC2 dot 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 NCN is equal to 2 raised to n. याद है तुमको ये फॉर्मूला जो हमने मार्क किया है. तो NC0 is equal to 1 और वो 1 उधर चला जाएगा ताकि मुझे ये मिल जाएगा. So what is that equal to? This is 2 raised to n minus 1. That is option C. Is this clear? Any doubts about that? Okay? Is that okay? Hello. अगला क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन में गो फॉर check here one formula which I'll give you now for the second question. Now before I start with the second question, देखते हैं यहाँ पर r into n minus 1 p r minus 1, ठीक है, प्लस n minus 1 p r is equal to क्या होगा? We have to find it out. Let's find it out. This is r into n minus 1 factorial upon n minus 1 minus this. तो ये बनेगा n minus 1 minus r plus 1 factorial. तो ये कैंसिल हो जाएगा. Okay? Plus n minus 1 factorial upon n minus r minus 1 factorial. I hope you get that. No, that is nothing but well इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे n minus r और यहाँ पर n minus r minus 1. So what I can do is I multiply here by n minus r and divide here by n minus r, ताकि ये कुल मिलाकर बन जाएगा n minus r factorial. Just like this. Is that okay? तो अब मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? n minus 1 factorial and n minus r factorial. So this will become n minus 1 factorial upon n minus r factorial. तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? r plus n minus r plus n minus r. अब वो प्लस r माइनस r गया. n into n minus 1 factorial is nothing but n factorial upon n minus r factorial, and that is equal to npr. That is equal to npr. तो ये एक नया फॉर्मूला मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, npr. ये एक नया फॉर्मूला है which I'll be using for question number 2. ठीक है? So now I'll start with question number 2. अब मैं question number 2 को शुरू करता हूँ. समझे? Is that okay? तो ये फॉर्मूला मैंने बॉक्स में डाल दिया, मतलब ये आपको लर्न करना है, फॉर्मूला यूज करना है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 12pr
12PR is equal to 11P6 plus 6 times 11P5, then what is R is equal to? अब देखिए इधर के साथ ये हम कंपेयर कर सकते हैं, एक एक टर्म कंपेयर कर लीजिएगा। देखो 11P6 is nothing but n-1PR. n-1 is 11 and R is 6. अब यहाँ पर R है, इंटू R है, इंटू R मतलब यहाँ पर 6 होगा, है? यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर 11 है, यहाँ पर R-1 है तो यहाँ पर 6 - 1 5 है, right? So that is equal to NPR, मतलब ये है n, अगर ये n-1 है तो ये n है और ये R है, R मतलब what is R is equal to 6. आप उसको एज ए फॉर्मूला देखिए या फिर आप उसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं। I can directly simplify it, like how? Like मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ भाई that is equal to 11 factorial upon 11 minus 6, that is 5 factorial, plus 6 into this is 11 factorial upon 11 minus 5, 6 factorial. इसमें से 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है क्या? 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो this become 5 factorial. So this will become 2 times 11 factorial upon 5 factorial, isn't it? अब मुझे वहां पर 12PR चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पर into 6 मैं मल्टीप्लाई करूंगा और into 6 मल्टीप्लाई करूंगा, so this becomes 12 factorial and this will become 6 factorial, that is equal to 12P6. So R is equal to 6 anyhow. Is that clear? Yes. Take the screenshot please. Okay. Question number 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ? If n-1 C3 plus n-1 C4 is greater than nC3, then is greater than nC3, then बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, देखो ये पता है कि NCR NCR प्लस NCR प्लस 1, तो इधर होगा n+1 CR+1, सही है? मतलब यहाँ पर n ओवर होता है, यहाँ पर n-1 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा वो n C और इससे बड़ा नंबर दैट इज 4, सही है? इज ग्रेटर देन NC3, सही है? अब इसको लिख लो, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू n-4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। इसमें से n फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस बिकम, अब n-3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ कैसे? n-3 into n-3 minus 1 n-4 factorial. I hope this is clear. Yes. So इसमें से n-4 factorial भी कैंसिल हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, so this will become n-3 is greater than 4 and therefore n is greater than 7. That's the answer. Is that okay? Any doubts about that? समझे? So C is the answer. इसी प्रकार से है सेम, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 8 है, आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ पर डायरेक्ट 3 से, इधर ऐसा एक एरो मार दो, सेम टाइप बोल दो, पेंसिल से कलर पेंसिल रेड पेंसिल जो भी है, यहाँ से ऐसा एक एरो मार दो 3 से 8 पर, ठीक है? क्योंकि वो सेम टाइप है तो आपको करना है, तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, where it says NCR plus 2 times NCR minus 1
प्लस NCR minus 2 is equal to NCR 2 times NCR minus 1 plus NCR minus 2 is equal to. अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ. I'll write this as, देखो, NCR plus NCR minus 1, okay, plus NCR minus 1 plus NCR minus 2. समझे? वही फॉर्मूला यूज करेंगे. n रिपीटेड है तो ये बन जाएगा n plus 1 और इसका बड़ा नंबर आएगा r. n है तो यहाँ पर आएगा n plus 1 और इसका बड़ा नंबर आएगा r minus 1. अब दोबारा वही n plus 1 आएगा n plus 2, c इसका बड़ा नंबर आएगा r. That's the answer. Is that okay? Is that clear? So the answer is n plus 2. मतलब none of the above. D is the answer. None of the above. Is that okay? Alright. Take the screenshot, please. Question number 5, 6. ये मैं नहीं करूँगा. बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप के. सेम टाइप और जो हमने सॉल्व किए हैं एक्चुअली HSC बुक में. HSC बुक वाले टाइप है तो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी टाइप का है. 7 की बात करूं मैं. क्वेश्चन नंबर 7 इफ NCR minus 1 is equal to 36. NCR is 84 and NCR plus 1 is 126. वो भी इसी टाइप का है एक्चुअली. देखो जाता बस मुझे उसका रेशियो लेना है. ओके, सो आई जस्ट टेक द रेशियो ऑफ दिस. व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज n and what is r. चलिए एक काम करते हैं. आई टेक द रेशियो ऑफ दिस. इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन r minus 1 फैक्टोरियल इनटू n minus r plus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय. अब डिवाइडेड बाय मतलब उधर को उल्टा जाके मल्टीप्लाई करेगा. सो दिस विल बिकम n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36 अपॉन 84. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा और यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा. इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे और वहां से दो इक्वेशन से n और r मिल जाएंगे. ठीक है, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. r फैक्टोरियल r माइनस, तो उसको मैं लिखूंगा r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. इसे मैं लिखूंगा r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल जो इसके साथ कैंसिल होगा. इनमें से इसे लिखना पड़ेगा मुझे. n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. So this will ultimately give me r upon n minus r plus 1 is equal to 12 3s are and 12 7. So 7r is equal to 3n minus 3r plus 3 or 10r minus 3n is equal to 3. इक्वेशन 1 इसी टाइप के हमने किए थे. आप लोगों को याद होगा. अभी मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ. Static ratio of these two n factorial अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल और ये ऊपर चला जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 84 अपॉन 126. n फैक्टोरियल उल्टा लिखना है. शुड हैव बीन n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n minus r minus 1 factorial. n factorial cancel. How am I going to write this r plus 1 factorial? This is going to be r plus 1 into r cancel. How am I going to write this? This is n minus r into n minus r minus 1 factorial. This gets cancelled. So what is this going to give me? This will give me r plus 1 upon n minus r is equal to 6 1 2 बचा 4 6 2 6 1.
7 2s are 7 3s are, right? So that will be 3r plus 3 is equal to 2n minus 2r. 5r minus 2n is equal to minus 3. Equation 2. Let us solve this equation. अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिखूंगा 10r minus 4n is equal to minus 6. 10r minus 3n is equal to 3. Subtract. This gets answer. This is minus n is equal to minus 9. So n is equal to 9. n को सब्स्टिट्यूट करिएगा. This will become 10r is equal to 3n plus 3. 27 plus 3 30. So r is equal to 3. So n is equal to 9 and r is equal to 3. Well, that is B is the answer. Is that okay? फिर इस टाइप के किए थे, इस टाइप के, इससे ज्यादा आप देख लेंगे इसमें से, इस टाइप के स्क्रीनशॉट. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है. सिग्मा r goes from summation r goes from 0 to m, ठीक है, 0 to m, n plus r c n, n plus r c n is equal to. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. पहले तो मुझे ये बताइए कि पता है आपको कि NCR is equal to, you know what, NCR is equal to NC n minus n. और यहाँ पर मैं इसको माइनस कर दूँ इसमें से, तो क्या बन जाएगा? सिग्मा r goes from 0 to m, n plus r c, this minus this is r. Agree? Isn't it? अब इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करते जाऊंगा, ठीक है. If I'll go on substituting here, what is this going to give me? NCR plus n. NCR और 0 से चला जाएगा, राइट ना. देखिए अब इसमें मुझे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है. तो सब्स्टिट्यूट r is equal to 0, तो क्या बनेगा? दिस विल बिकम n c 0, फिर ये बनेगा n plus 1 c1, r is equal to 1, हाँ, फिर ये बनेगा n plus 2 c2, फिर ये बनेगा n plus 3 c3, और ये कहाँ तक जाएगा पता है? n plus m cn. Correct. cn. Any doubts about this? ये समझ में आ गया? हेलो, इज दैट क्लियर? अब इसमें, हाँ गुड. अब इसका वैल्यू कितना आता है पता है तुमको? What is the value of NC0? Is 1. है ना? And what is the value of this? NC1 is n. तो n plus 1 C1 is n plus 1 S1. सही है? बराबर है क्या? बाकी तो as it is रहेगा. This is NC2 C2 n plus 2 C2 plus n plus 3 C3 plus dot 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 n plus m CM. Any doubt so far? Is that clear? यहाँ पर डाउट है? नहीं ना? अब मैं क्या करूंगा इसमें? Yeah, great. Now I'll write this as, you see this is actually equal to n plus 2. बराबर है? इस n plus 2 को मैं लिखूंगा n plus 2 C1. Can I write this? Because NC1 is n, na? NC1 is n, yes. So n plus 2 C1 is n plus 2. Yes, sir. Plus this n plus 2 C2 plus this n plus 3 C3 plus dot 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 n plus n CI. अब वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे. ये रिपीट हो रहा है और देयर इज अ डिफरेंस. तो ये क्या बन जाएगा? व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? n plus 2 n plus 2 n
plus 2c2 C2 प्लस दिस n प्लस 3c3, तो ये क्या बनेगा? n plus 3c3 दिस विल बिकम n प्लस 3c3, n plus 4 हाँ c4 होगा, n plus प्लस 4 दिस विल बिकम n प्लस 3 ना, हाँ, सो दिस विल बिकम n प्लस 4 c3, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये? n plus देखो m plus यहाँ पर 1 जो भी कुछ नंबर है, यहाँ पर अगर हम लास्ट वाला नंबर देखते हैं, इन दोनों का देखते हैं, तो जो लास्ट वाला नंबर है उसका एक प्लस होगा और ये कंटिन्यू होगा, n तो plus यहाँ m पर फाइनल plus क्या 1 होगा? इसका लास्ट वाला जो नंबर है n plus m m plus 1 प्लस 1 cm ये बनेगा, करेक्ट? yes n प्लस m प्लस, अब यहाँ पर दोबारा n प्लस m प्लस 1 cn, अगर इसको मैं NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर यूज करूं तो ये क्या बन जाएगा? n प्लस m प्लस 1 c दिस माइनस m विल गिव मी n प्लस 1। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ऑप्शन इस फॉर्म में दिया है, अगर ऑप्शन ऐसा दिया होता तो वो लिख दिया होता है। व्हाट इज द ऑप्शन? दैट्स द आंसर, n प्लस m प्लस 1 c n प्लस 1, ए इज द आंसर। आपको क्या लगता है ये स्टार है? Is that okay? जो ये 12th वाला क्वेश्चन है ना, एवरीबडी इन द रूम शेक्स हैंड्स, इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 13 भी। इट जस्ट लाइक दैट। क्या दिया है? 13 on the occasion of Diwali festival, each student of a class sends a greeting card to the others. जैसे हैंडशेक करता है दूसरे के साथ, वैसे ग्रीटिंग भेजते हैं। इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो देन द टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सचेंज्ड बाय द स्टूडेंट्स इज, कैसे करें? टोटल 20 स्टूडेंट्स है ना, yes तो उसको ग्रीटिंग कार्ड भेजने के लिए so when we are talking about the greeting card, for the exchange of a greeting card, how many people are required? 2, एक sender और एक receiver. So in how many ways I can do this activity? 20C2, isn't it? yes लेकिन सेंडर और रिसीवर एक्सचेंज भी तो हो सकते हैं, मतलब जो सेंडर है वो रिसीवर बनेगा, वो रिसीवर भी बनेगा, वो तो और एक ग्रीटिंग कार्ड होगा वहां पे into 2। दैट्स द आंसर, 2 into 20C2। लुक एट दिस, समझ में आ गई? हाँ, isn't it? yes For the exchange of a greeting card, there has to be one sender and one receiver. So this is one greeting card. लेकिन it can be the other way around also. The receiver will become the sender and the sender will become the receiver. तो वहां पर और एक greeting card होगा, तो ऐसे into 2. So when we select 2 persons, these 2 persons can be selected in how many ways? 20C2. And how many greeting cards are exchanged between these 2 people? 2. So into 2. Is that clear? Next question. तो ये हैंडशेक जो है उसमें into 2 नहीं होता, दैट इज ओनली डिफरेंस हियर, ओनली 20C2 होगा हैंडशेक्स के लिए, लेकिन ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज के लिए उसको into 2 हो जाएगा। समझ में आ गई? दैट इज द डिफरेंस इन क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं अभी। दिस इज क्लियर ना? नेक्स्ट, n plus 2 C8, 14, ये 14 वाला करना पड़ेगा, ठीक है? उस टाइप का दिख रहा है, n plus 2 C8 डिवाइडेड बाय n minus 2 P4। तुम बोलोगे कि मैंने तो बोल दिया कि इस टाइप के नहीं करने, फिर क्यों कर रहा हूँ? पता चलेगा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? देखते हैं, बताइए कैसे करेंगे इसको। अभी रूल है, बोलो। इज गोइंग टू बी n plus 2 factorial upon 8 factorial
into n plus 2 minus 8 that is n minus 6 factorial. समझ में आ गई बात? Yes. C था ये, अब ये ऊपर चला जाएगा. So this will become n minus 2 factorial, n minus 2 minus 4 that is n minus 6 factorial is equal to 6 plus 7 plus 5 12 and this is 16. Nothing is getting cancelled here. So we ask this. I hope you get it. Yes. Well, इसमें से n minus 6 factorial straight away gets cancelled. This is going to be n plus 2, n plus 1, n minus 1, n minus 2 factorial divided by 8 factorial. तो 8 factorial ऐसे रहेगा 57 into 8 factorial upon 16 ऐसे समझे? अब मुझे क्या करना है इसमें अपन n minus 2 factorial of course cancel. Now I have to arrange these numbers in the descending order form. That is the task to be done. कैसे कर सकते हैं बताइए मेरे को. This is like 8 factorial में तो 57 into 8 factorial is 8 7 6 5 4 3 2 1 upon 16. तो 16 मतलब 8 to the 16 तो गया. अब जो कुछ बचा है उसको आप ऐसे 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स फॉर्म में कैसे अरेंज कर सकते हैं. फिर अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 19 3 19 into 3 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3. बताइए कैसे लिखोगे आप इसको. देखो 7 3 21 हो सकता है, ये 19 हो गया बराबर है क्या. 6 3 18 हो सकता है एंड 5 4 20 हो सकता है. ठीक है 18 19 20 21. अब इसमें से 18 19 20 21 n is equal to 19. समझे क्या? Yes. n is equal to 19. Is that clear? थोड़ा सा अलग था इसके लिए मैंने सॉल्व कर लिया इसको. I hope this is clear to you. Okay. Let me go for the next question now. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हाँ. Now क्वेश्चन नंबर 15 से पहले मैं 16 सॉल्व करूंगा, देन आई गो फॉर 15. चलिए 16 वाला सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. 15 वाला तुम्हारे लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट है. 10 different letters of an alphabet are given. Different letters, huh? 10 different letters of an alphabet are given. Words with 5 letters are formed. 10 letters are given. उसमें से 5 letters का word तैयार किया है. All are different. From these given letters, then the number of words which have at least one letter repeated is. Number of words which have with at least one repetition. इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था. देखिए 10 letters are given. ठीक है, उसमें से मुझे 5 letter वर्ड तैयार करना है. पहली हम विथ रिपीटिशन की बात करेंगे. विथ रिपीटिशन. सो हाउ मेनी पॉसिबल वर्ड्स आर देयर विथ रिपीटिशन? इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 10 and 10 and 10. सो विथ रिपीटिशन हो जाएगा 10 raised to 5. करेक्ट. विथ रिपीटिशन हो जाएगा 10 raised to 5. अब विदाउट रिपीटिशन वाला करते हैं. विदाउट रिपीटिशन. विदाउट रिपीटिशन कितने पॉसिबल है बताइए? 10 into 9. हाँ हाँ. सो 10 में से 5 मुझे अरेंज करने हैं. सो विदाउट रिपीटिशन कैसे हो सकता है वो? 10 P5. करेक्ट. सो दीज आर टोटल. दीज आर विदाउट रिपीटिशन. ये विथ रिपीटिशन मतलब इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज. एंड दीज आर विदाउट रिपीटिशन. बराबर है क्या? दीज आर एक्चुअली टोटल. विथ रिपीटिशन मतलब टोटल हो सकता है. ये इसमें विथ और विदाउट दोनों है. बराबर है क्या? विथ रिपीटिशन एंड विदाउट रिपीटिशन ये दोनों भी इसमें कंबाइंड है एक्चुअली. समझे ना? और ये है विदाउट रिपीटिशन. सो विथ रिपीटिशन वाले कितने हो जाएंगे?
दिस माइनस दिस ना, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा नंबर ऑफ वर्ड्स विथ एटलीस्ट वन रिपीटिशन, एटलीस्ट वन रिपीटिशन, 2 रिपीटिशन, 3 रिपीटिशन, 4 रिपीटिशन, ऑल 5 रिपीटिशन. सो रिक्वायर्ड नंबर हियर, कौन सा रिक्वायर्ड मतलब ये वाला नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10⁵. 1 2 3 4 5 minus 10 भी 5. So that will be 10 factorial upon 5 factorial. So that will be what? 10 into 9 into. हाँ, तो 10 minus 10, 9, 8, 7 and 6. कर लो इसको भी. ये आएगा 72 into 420. Subtraction कर लो इसको. कर लो फटाफट. चलो. What is the answer? 69760. Yes. Is it? Yeah. This is the answer. A is the answer. Is that clear? Take the screenshot, please. Page number 13.2 पर ये concept exponent of prime p in factorial n. ठीक है? So let p is the prime number and n is the positive integer. P is the prime number and n is the positive integer. ठीक है? So यहाँ पर ये जो exponent of prime number p in factorial n, it is denoted by EP n factorial. EP of n factorial, and it is n upon p. अब ये जो ब्रैकेट है ना, इसे कहते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ इट, इंटीजर पार्ट प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ n अपॉन p स्क्वायर प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ n अपॉन p क्यूब, और ये सिलसिला चलता रहेगा. कहां तक चलेगा? वो चलेगा n अपॉन p रेज टू s, where ये जो s है, s is the largest positive integer, s is the largest positive integer such that p raised to s and p raised to s plus 1 इसके बीच में n लाई करेगा. ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया, आप लोग बोलेंगे ठीक है, लेकिन मुझे पता है आप लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ गया तुम्हारा. अनलेस एंड अनटिल मैं इसको एक प्रॉब्लम लेकर आपको एक्सप्लेन नहीं करूं, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा. ये डेफिनेशन बताया मैंने, और आप लोगों को पूछा हाँ समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, झूठ मत बोलो, डोंट टेल लाइज. लेट अस चेक इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल के तौर पर इसको हम देखते हैं. तो वहां पर कुछ, हेलो, तो वहां पर एक, ये मैंने आपको बता दिया. अब मैं एक एग्जांपल के साथ इसको देखूंगा. आई लुक एट इट विद एन एग्जांपल. ठीक है? फर्स्ट इलस्ट्रेशन, अब यहाँ पे 4 इलस्ट्रेशन दिए हैं, हर एक इलस्ट्रेशन हम देखने वाले, स्टडी करने वाले. पहला इलस्ट्रेशन, और वही इलस्ट्रेशन वहां पर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा, एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 100 फैक्टोरियल, वही दिया यहाँ पे, एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 100. ठीक है? तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 हो सकता है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 हो सकता है, एक्सपोनेंट ऑफ 7 हो सकता है, बिकॉज दीज आर ऑल द प्राइम नंबर्स. करेक्ट? ठीक है? ऑलराइट, देखिए. तो एक्सपोनेंट ऑफ p, एक्सपोनेंट ऑफ 3, so exponent of 3 in 100 factorial. 100 factorial is n ना, ठीक है? तो उसको अगर हम लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं, देखो गौर से यहाँ पे, इफ आई लुक एट द फॉर्मूला हियर, तो मुझे उसको लिखना है E3 of 100 factorial, E3 of 100 factorial is equal to, गौर से देखिए, it is 100 upon 3. ठीक है? मुझे इसका इंटीजर पार्ट लेना, इंटीग्रल पार्ट, 100 upon 3 स्क्वायर. ठीक है? 100 upon 3 क्यूब. और कहां तक जाना है मेरे को? ये
यहां तक, ये मुझे बताएगा। हियर व्हाट इज n? n क्या है यहाँ पे? n इज 100, ठीक है। और p क्या है यहाँ पे? p इज 3। तो 3 रेज टू काहे के और काहे के बीच में 100 लाई करता है? 3 रेज टू, देखो 3 स्क्वायर इज 9, 3 का क्यूब 27, 3 रेज टू 4 81। तो 81 इससे छोटा है, तो 3 रेज टू 4, और s+1 होगा 3 रेज टू 5। समझ में आ गया? तो मुझे जाना है सिर्फ 4 तक, s इज 4। तो मुझे इसमें सिर्फ और एक नंबर सिर्फ ऐड करना है, 100/3 रेज टू 4। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का मतलब क्या है? इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर पार्ट ऑफ इट, फ्रैक्शन नहीं लेने का। तो 3 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा? 33.33। तो मुझे सिर्फ 33 लेने का है यहाँ पे। समझ में आ गई बात? 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 11 जा 99। तो 99 मतलब 9 11 जा लेने का मेरे को। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर ये आएगा 27, 27 2 जा 54, 27 3 जा 81, 27 4 जा ऊपर गया तो 27 3 जा। समझ में आ गई बात? ओके। 3 रेज टू 4 is 81, 81 1 जा 81 1 जा, and therefore this answer is 48. That's it. Is this clear? This is exponent of 3 in 100 factorial. और यही आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 15 का। The answer is 48. समझ में आ गया? Well, let us apply the same concept for अगला वाला illustration. Exponent of 15 in 100 factorial. Exponent of, एक सेकंड, 100 नहीं, मैं यहाँ पे काउंट करूंगा। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। Please take the screenshot. This concept has to be there for the prime number. लेकिन कई बार उसको दूसरे नंबर्स के लिए भी इंप्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि illustration 2। तो उसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो illustration exponent of 15 in 100 factorial, illustration 2, वहां का illustration 2 वो मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि वैसा वाला इधर नहीं दिया। तो exponent of 15 in 100 factorial, exponent of 15 in 100 factorial is, ये उन्होंने पूछा है वहां पे, ठीक है। तो वहां पर हम 15 जो है, 15 is equal to 3 into 5, 15 is equal to 3 into 5। तो मुझे exponent of 3 देखना है in 100 factorial, exponent of 3 in 100 factorial, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, वो 48 है। समझ में आ गई बात? उसी प्रकार से मुझे एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 factorial फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसी प्रकार से, बिकॉज दीज आर द प्राइम नंबर्स, ये उसके फैक्टर्स है। तो व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 factorial? उसी तरह से बता दो मुझे, बताओ। तो 5 रेज टू कहां से लेकर कहां तक जाएगा, जो कि 100 से 100 के लिए होगा। 5 रेज टू व्हाट? 5 5 is 25, 2 कैसे जाएगा? इसके छोटा वाला नंबर 100 से, तो 5 5 25, 5 का क्यूब will be 125, तो रेज टू 2 और रेज टू 3 के बीच में लाई करेगा, सो s इज इक्वल टू 2। दैट्स इट। समझ में आ गया? तो अब यहां पर आएगा, दिस इज 100/5 इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, प्लस 100/5 स्क्वायर। समझे? तो दिस इज 20 and this is 4, so that will be 24। समझ में आ गई बात? Yes. ठीक है। अब ये दोनों मैंने उसके कैलकुलेट कर लिया। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस पार्ट। बराबर है क्या? नाउ लेट अस कम बैक टू दिस पार्ट।
हाँ हाँ, सो इसमें अब एक प्रॉपर्टी है x, बोलो ये जो n नंबर है ना n, वो नंबर से 5 का छोटा पावर कितना होगा 25, और 5 का बड़ा पावर कितना होगा उससे बड़ा 125, समझे क्या? तो मुझे वो सिर्फ s तक लेके जाने का है, s इज इक्वल टू 2 ईयर, समझे क्या? इज दैट ओके? 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 5 का क्यूब इज 125, तो मेरा जो 100 नंबर है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, जबकि प्रीवियस केस में 100 जो था वो 3 के कौन से पावर के बीच में लाई कर रहा था, 3 रेज टू 4 एंड 3 रेज टू 5, तो वहां पर हम 4 तक चले गए बिकॉज s इज इक्वल टू 4, यहां पर 5 रेज टू 2 पर ही मेरे को रुकना पड़ेगा। इज दैट ओके? वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ देयर इज एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल, तो इसके दो फैक्टर्स है 3 एंड 5, तो इसका मिनिमम ऑफ दीज टू, मिनिमम ऑफ 24 एंड 48, ये प्रॉपर्टी है, उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल इज मिनिमम ऑफ उसके फंडामेंटल फैक्टर्स, तो व्हाट इज द मिनिमम ऑफ दीज टू 24, तो इसका आंसर कितना आ गया 24। एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल इज 24, ये प्रॉपर्टी है क्योंकि उसके दो फैक्टर्स होंगे, तो उसमें 1 1 नहीं रहेगा, लेकिन जो प्राइम नंबर से उसमें से तो 3 और 5 के जो मिनिमम है वो मेरे को लेना पड़ेगा। इज दैट ओके? क्लियर? स्क्रीनशॉट प्लीज। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, आई नो दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, illustration number 3, illustration number 3 क्या बोलता है वो? The number of zeros at the end of 100 factorial is, number of zeros at the end of 100 factorial is A B C D। नंबर ऑफ जीरोस मतलब 10 का पावर, क्योंकि 10⁻1 होता है तो एक जीरो आता है, 10⁻2 होता है तो 2 जीरो आते हैं। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है 10⁻2 व्हाट, 10⁻2 क्या है वो उन्होंने एक्चुअली पूछा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा कि भाई 100 फैक्टोरियल के सारे 100 फैक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आई कैन से 100 फैक्टोरियल जो है उसको मुझे अगर प्राइम फैक्टर्स में लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा 2 रेज टू a, 3 रेज टू b, 5 रेज टू c, 7 रेज टू d, ये प्राइम नंबर है, समझे क्या? इजंट इट? तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि भाई एक्सपोनेंट 2 ऑफ 100 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट 3 मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, एक्सपोनेंट 5 मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, एक्सपोनेंट 7 अभी मैं फाइंड आउट करूंगा। तो एक्सपोनेंट 2 के लिए अगर मुझे लिखना है तो 100 जो है वो 10 के कौन से पावर्स के बीच में होता है, सॉरी 2 के, क्योंकि मेरे 2 लिखा है। 2 रेज टू 5 इज 32, 2 रेज टू 6 इज 64 एंड 64, 2 रेज टू 6 एंड 2 रेज टू 7, तो मुझे 2 रेज टू 6 मतलब यहाँ पर s इज 6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 100/2 बराबर है 100/2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 100/2 रेज टू 3, 100/2 रेज टू 4, कहां तक जाना है 6 तक जाना है, 100/2 रेज टू 5, 100/2 रेज टू 6 यहां तक जाना है मुझे, करेक्ट? yes। इसके मुझे सिर्फ इंटीजर पार्ट्स लेने हैं, तो दिस इज 50, 2 to the 4 25 बराबर है क्या? 8 हाँ 12, 8 12 16 6 32 3 है ना, एंड दिस इज 1
समझे? तो 50, 25 और 12, 6, 3, 1 कितना आएगा ये? दिस कम्स आउट टू बी 97. समझे? वेल, exponent 3 of 100 factorial we have already calculated. कितना था वो? exponent 3 of 100 factorial it was 48 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था. ठीक है ना? exponent 5 वो भी शायद हमने कैलकुलेट किया था तो पिछले क्वेश्चन में. exponent of 5 ना? exponent of 5 मैंने कैलकुलेट किया था, नहीं किया था? किया 24 था वो. ये दोनों हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कैलकुलेट किए थे. अब मुझे कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंट 7 इन 100 फैक्टोरियल. भाई 7 के लिए क्या होगा बताओ? 7 का स्क्वायर 49 है ना? Yes. और दैट्स इट. उसके बाद वो 7 का क्यूब जो आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, है ना? तो मुझे सिर्फ सेकंड तक जाना है. सो दिस इज नथिंग बट 100/7 प्लस 100/7 स्क्वायर. 100/7 कितना आएगा? 7 1 7 3 है, 7 4 28 14 14 और 1 दैट इज 15. सही है? सही है? हेलो, करेक्ट है ना? तो 7 रेज़ टू कितना आएगा? 7 रेज़ टू जो भी कुछ आ गया मैंने कैलकुलेट किया था. अब हम बात करेंगे 100 फैक्टोरियल की. तो भाई अगर मुझे 100 फैक्टोरियल लिखना है तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 100 फैक्टोरियल I can write it as 2 raised to a into 3 raised to b into 5 raised to c into 7 raised to d into जो भी कुछ है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में आएगा ये. सही बात है? मुझे 2 raised to कितना मिला है यहाँ पे बताइए? 97. 3 raised to कितना है मेरे पास? 48. 5 raised to कितना है? 24. एंड 7 रेज़ टू 15 और चलता जाएगा. 9 रेज़ टू भी आ सकता है तो 11 रेज़ टू आएगा कुछ. बराबर है ना? अब मैं इस देखो मुझे 5 और 2 से लेना देना है क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस मतलब 10 का पावर चाहिए. तो मुझे 10 का पावर चाहिए उसमें. 10 का पावर चाहिए तो मैं इसको स्प्लिट करके लिखूंगा. इसको लिखूंगा 97 को आई स्प्लिट इट एज 73 प्लस 24. समझे क्या? 2 रेज़ टू 97 को मैं लिखूंगा 2 रेज़ टू 73 इंटू 2 रेज़ टू 24 और ये 5 रेज़ टू 24 और 2 रेज़ टू 24 को कंबाइन करके क्या आएगा बताओ मुझे? व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? दिस विल गिव मी 2 रेज़ टू 73, 3 रेज़ टू 48 व्हाटएवर एंड 5 इंटू 2 10 रेज़ टू 24 आएगा. इज दैट ओके? एंड देन 7 रेज़ टू 15, 11 रेज़ टू जो भी कुछ है. समझ में आ गया? Now this 10 raised to 24 will contribute to 24 zeros. तो number of zeros is 24. Number of zeros कितने आएंगे? 24. That's it. That's the answer. Is that clear? So no doubt this is a star problem. Illustration में है लेकिन ये star problem. Is that okay? ये बहुत different है. Difficult तो नहीं है लेकिन different है. इसी में मैं सॉल्व करूंगा इलस्ट्रेशन 4. एक्सपोनेंट ऑफ कितना दिया? एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल. इन 100 फैक्टोरियल इज कैसे करेंगे? देखो 12 का मतलब क्या होता है रे? 12 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 3. करेक्ट ना? 2 इंटू 2 इंटू 3. तो ये कैसे करेंगे इसको? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको 2 रेज़ टू और 3 रेज़ टू और 5 रेज़ टू ये सब मैंने फाइंड आउट किया है. तो जैसे मुझे यहाँ पर 10 का एक्सपोनेंट चाहिए था, 24 आया, वैसे मेरे को यहाँ पर 12 का एक्सपोनेंट चाहिए. तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग बताओ? वेरी सिंपल. 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 97 into 3 raised to 48 into 5 raised to 24 into 7 raised to 15 वैसा आएगा. करेक्ट? अब मुझे इसमें से ये दोनों को कनेक्ट करके ये चाहिए. तो कैसे कर सकते हैं इसको? देखो यहाँ पे हाउ आई गोइंग टू गेट दैट? देखो मुझे उसको चाहिए ऐसे 2 का स्क्वायर इंटू 3
ब्रैकेट रेज टू समथिंग समथिंग, बराबर है। तो 3 रेज टू यहाँ पर मैं 48 ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि 48 टू जा कितना आएगा? 96। हाँ, तो 48 तो मैं ले ही सकता हूँ, बराबर है क्या? इज़न्ट इट? सो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 48 टू जा 96, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 बचेगा, उस 2 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2/3। 3 के सारे पावर्स कंज्यूम हो चुके हैं। अब क्या है, अब बाकी के लिख लेते हैं, 5/24, 7/50। तो दिस इज 12, सो 12 का पावर क्या आ गया? 48। सो एक्सपोनेंट ऑफ 12 in 100 factorial is, exponent of 12 in 100 factorial is 48. Is this okay? So you can do it with the help of prime numbers also, like this also. Is that okay? Take the screenshot please. That is exam illustration number 4. Okay? So these are all the sums which are based on the exponent of p in 100 factorial. I'll go for the next question. Exercise. Page number 13. Question number 17. If 7 points out of 12 are on the same straight line, the number of triangles formed. 12 points are there. उसमें से 7 are on the straight line. अच्छा, 12 में से ट्राइंगल्स कितने हो सकते हैं टोटल? एक ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए अपने को? 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, तो 12C3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। लेकिन ये जो 7 है, दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन ना, मतलब 12 से हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो सकते हैं 12C3, लेकिन उसमें से माइनस मेरे को 7C3 करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अभी बाकी मैं कैलकुलेशंस तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। दिस आंसर कम्स आउट टू बी 185C। ठीक है, आई लीव इट टू यू फॉर द कैलकुलेशन, बट दिस इज हाउ इट इज डन। समझ में आ गया? मैं इसके ऊपर ज्यादा मतलब खल नहीं करूंगा, मैं इस टाइप के हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। 18 वाला, अ पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स। पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स। n साइडेड पॉलीगॉन अगर है, n साइडेड पॉलीगॉन, तो उसके डायगोनल्स कितने होते हैं? ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। NC नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? एंड में -n होता है। हाँ, NC2 -n। n। और उन्होंने बोला कि भाई पॉलीगॉन के पास कितने डायगोनल्स है? 44। NC2 - n is equal to 44. Can you solve this? How? n factorial, 2 factorial, n minus 2 factorial minus n is equal to 44. n into n minus 1 upon 2. बराबर है क्या? Minus n is equal to 44. Right? So this is like n square minus n minus 2n is equal to 88. Right ना? n square minus 3n minus 88 is equal to 0. Minus 11 plus 8. So n is equal to 11 हो सकता है और n is equal to minus 8 हो सकता है। माइनस 1 से होगा नहीं। 11 sided polygon. C is the answer. This is okay. Any doubts about that? Okay, next question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये वो पॉलीगॉन 19 वाला भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 19 सेम टाइप। ठीक है। क्वेश्चन 20, ठीक है। द नंबर ऑफ number of all possible selections of one or more questions from 10 given questions, each question having an alternative is.
क्वेश्चन नंबर 20 बोलिए। नंबर ऑफ all possible selections, number of all possible selections, all possible selections, ठीक है। of one or more questions, मतलब मैं एक क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकता हूं या ज्यादा क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। Selection of one or more questions from 10 given questions, each question having an alternative is, कैसे कर सकते हैं? देखो 10 क्वेश्चंस है यहाँ और हर एक क्वेश्चन का अल्टरनेटिव भी है ना, हर एक क्वेश्चन का अल्टरनेटिव, ईच क्वेश्चन हैज अल्टरनेटिव। अब एक क्वेश्चन को मैं कैसे ऑप्ट कर सकता हूं? देयर आर 3 ways I can deal with the question, 3 ways to deal with every question. What are the 3 ways? क्या क्या है 3 ways? I can either select the question, मतलब उसको सॉल्व करूं, या फिर नहीं, या फिर मैं उसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करूं, बराबर है। और मेरे को दोनों भी आंसर नहीं आ रहे तो उसको छोड़ दूं, मतलब रिजेक्ट द क्वेश्चन, समझे क्या? So these are 3 ways of dealing with the question. पहले क्वेश्चन के साथ एंड दूसरे क्वेश्चन के साथ भी मैं 3 तरीके से डील कर सकता हूं, एंड तीसरे के साथ भी। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डील विथ 10 क्वेश्चंस क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज टू डील विथ 10 क्वेश्चंस, क्या आएगा वो? ऑफ कोर्स 3 raised to 10, जिसमें से एक तरीका होगा रिजेक्ट ऑल द क्वेश्चंस, पहला नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, 10 के 10 नहीं आ रहे। लेकिन उन्होंने बोला है कि आपको कम से कम एक क्वेश्चन के साथ तो डील करना है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस ऑफ 1 or more क्वेश्चंस, मतलब आप एक क्वेश्चन या सब क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करोगे? रिजेक्टिंग ऑल इज नॉट एन ऑप्शन। आपको एक क्वेश्चन देखो ना, वहां पे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस, आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है या एक से ज्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, मतलब आंसर करने हैं, इजंट इट? ये है टोटल नंबर ऑफ वेज। इसमें से एक वे होगा रिजेक्ट ऑल द क्वेश्चंस, इसमें से एक तरीका, करेक्ट, इसमें से 1 वे इज टू रिजेक्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को रिजेक्ट करो, ये एक तरीका है, बराबर है क्या? So, number of ways to answer बोलो या to select बोलो। select मतलब उसको मैंने आंसर किया, 1 or more questions, एक या इससे ज्यादा क्वेश्चंस को अगर मुझे आंसर करना है तो there how many ways are there? 3 raised to 10 minus 1. Is this okay? स्टार है ये, क्या नहीं है? अलग है ये। Is that okay? So what is the answer here? C is the answer. समझे? क्वेश्चन नंबर 21। The number of ways of painting the faces of a cube with 6 different colors. Six different colors. देखो मेरे पास 6 कलर्स हैं और 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब है, और हर एक फेस का कलर डिफरेंट होना चाहिए, बराबर है क्या? तो मुझे 6 में से 6 सिलेक्ट करने हैं, अरेंज तो नहीं करना, उसको सिलेक्ट करना है ना। 6 C6
दैट इज 1। एक ही तरीका है, हर एक इसको अलग। सो 1 इज द आंसर हियर। समझे क्या? ए इज द आंसर। हेलो, 6 फैक्टोरियल कब होगा? जब उसको अरेंज करना है। क्यूब को थोड़ी तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं, उसको तो सिलेक्ट करना होगा, इस स्पेस के लिए कौन सा, इस स्पेस के लिए कौन सा। सो इट इज सिलेक्ट 66 1। इज दैट ओके? ओके, वेल क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहे हैं, अ पर्सन wishes to make up as many different parties as he can out of his 20 friends। जितने ज्यादा हो सके उतनी उसको पार्टीज करनी है, ठीक है। Such that each party consists of same number of persons। सेम नंबर ऑफ पर्सन्स, ज्यादा से ज्यादा पार्टी करनी है लेकिन सेम नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ। उसके 20 फ्रेंड्स हैं and those number of parties, so number of parties is equal to number of participants। number of parties मतलब 3 या 4 लोग लिए तो 4 ही पार्टीज होंगे उसकी, ठीक है। number of parties is equal to number of participants okay, isn't it? Okay, and that should be maximum also, that should be मैक्सिमम। अब उसके 20 दोस्त थे 20, तो उसमें से उसको R नंबर ऑफ फ्रेंड सिलेक्ट करने हैं एंड दिस 20 CR शुड बी मैक्सिमम। 20 CR शुड बी मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम तब होता है अगर ये इवन नंबर है, देन R इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10। सो नंबर ऑफ पार्टीज 10 and number of participants in each party 10। so what is the answer here? What is the answer here? Hello? 10, isn't it? So the answer is what? B is the answer। is that okay? right ना? 25th को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, ठीक है। I'll solve it later on। the total number of words 26, 27, okay, 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। The total number of words which can be formed out of the letters A, B, C, D, E, F taken 3 together, A, B, C, D, E, F taken 3 together, okay, such that each word contains at least one vowel। इसमें 2 vowels हैं, at least one vowel, at least one vowel। how is this called? at least one vowel मतलब one vowel 2 consonants और 2 vowels 1 consonant। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 ही vowels है। so how is this possible? बोलो। अब देखो, therefore number of words is equal to 2C1 into 4C2 or plus 2C2 into 4C1। now 2C1 is 2, 4C2 is 4 factorial 2 factorial 2 factorial plus 2C2 is 1 into 4C1 is 4। समझे? 2 2s are 4 तो ये आएगा 3 into 2, बराबर है क्या? so this is 4 3s are 12 plus 4 16। is this okay? what is the answer here? 4 3 2 16। एक मिनट, ये इंटू क्या है? 4C2 why it is 16 26 प्लस ओके। हाँ वेट ये नंबर ऑफ वर्ड्स सिलेक्ट हो गए ना सिर्फ। होल्ड ऑन प्लीज, मैंने गड़बड़ किया। ये तो बस मैंने उसको सिलेक्ट कर दिए, वर्ड्स को सिलेक्ट। अब ये जो कुछ 3 मैंने सिलेक्ट किए उनको मुझे अरेंज भी तो करना पड़ेगा। एंड
अरेंज मतलब 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 to the 6 मतलब into 6 मतलब 96। हमने सिर्फ सिलेक्ट किया, उसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा। व्हाट इज द आंसर हियर? सी इज द आंसर। इज दैट ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? क्वेश्चन नंबर 27, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x satisfying the inequality 10c(x minus 1) is greater than 2 times 10cx is smallest value of x। चलिए देखते हैं। 10 फैक्टोरियल x minus 1 फैक्टोरियल 10 minus x minus minus plus that is 11 minus x factorial is greater than 2 times 10 factorial upon x factorial into 10 minus x factorial। 10 फैक्टोरियल कैंसिल, x फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा x into x minus 1 फैक्टोरियल और वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बराबर है क्या? 11 माइनस एक्स फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 11 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स फैक्टोरियल और वो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? तो क्या बचेगा? दिस विल गिव मी 1 अपॉन 11 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2 अपॉन एक्स, करेक्ट? क्रॉस, so this is x is greater than 22 minus 2x, 3x is greater than 22, so x is greater than 22 upon 3। उन्होंने पूछा है x is greater than 22 मतलब x is greater than 22 upon 3 मतलब it is greater than 8 point ना, 7 point something something 7 point something something। तो अब नहीं 7 point something something। अब मुझे x का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू 7 point something something, लेकिन x should be इंटीजर। तो x can be 8, x can be 9, x can be 10, whatever। इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा है? दिस इज द मिनिमम वैल्यू, x minimum is 8। That's the answer. Is that okay? So D is the answer. Any doubts about that? Any doubts about that? This is the meaning of minimum value. क्योंकि x should be greater than 7 point something something, but it has to be an integer. Yeah. So which is the minimum integer in the answer scheme? 8. So that is the answer. Okay. Next question. अगला question. Question number 29 देखो. 29. 29 लिखते हैं, and then we start. The number of ways of choosing a committee of 4 women and 5 men from 10 women 9 men, 10 women 9 men, इसमें से क्या है? 4 women 5 men, 4 women 5 men, ऐसा कमिटी होना चाहिए। ओके, if Mr. A refuses to serve on the committee when Ms. B is a member of the committee, is कैसे करेंगे? So X पहले तो हम भी बोलेंगे भाई there is no restriction। अगर no restriction होगा, no restriction, तो नंबर ऑफ कमिटीज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज बोलो। 10c4 and into 9c5, करेक्ट ना? दिस इज नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन मतलब ये 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, and let me calculate this। कैलकुलेट करने के बाद this comes out to be 26/60। 20 आप कर लेना, ये कैलकुलेशन देख लेना। 26/60। इज दिस ओके? ठीक है, आप देख लेना इसको। तो ये है नो रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर बोला है
कि मिस्टर ए रिफ्यूजेस टू सर्व ऑन द कमिटी व्हेन मिस बी इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी। मतलब मिस्टर ए एंड मिस बी ये दोनों कभी कमिटी में हो ही नहीं सकते इकट्ठा, क्योंकि ये बंदा बोलता है कि मैं इनके साथ नहीं काम करूंगा। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर इसको लिया और इसको नहीं लिया तो चलेगा, इसको लिया इसको नहीं लिया तो चलेगा, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। तो अब हम नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करेंगे व्हेन बोथ आर सर्विंग ऑन द कमिटी, और उसको माइनस करेंगे इसमें से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इजंट इट? सो व्हेन मिस्टर ए एंड मिस बी ये दोनों इंक्लूडेड है, वो वाला मैं नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करूंगा और उसको माइनस कर दूंगा इससे। समझे क्या? अब जब दोनों को इंक्लूड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? दोनों को इंक्लूड किया हुआ मतलब क्या कि वे ये जो मिस भी है उसको तो लेना ही पड़ेगा, तो उसको लेने का एक तरीका है, बस ले लो उसको। मुझे फोर वुमेन में से एक वुमेन तो हो गई, एक वुमेन हो गई। अब 9 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 9C3/1 बराबर है। ये मैंने बी को इंक्लूड किया। उसी तरह से ए को इंक्लूड करने का क्या तरीका है कि भाई ए को ले लो, ए को लेना है मतलब उसको एक ही लेने का तरीका है, बस उसको इंक्लूड कर दो। अब मुझे 5 मैन में से 1 मैन तो हो गया, अब मुझे 4 मैन आउट ऑफ 8 मैन, तो 8C4 हो जाएगा ये। समझे? सो दैट विल बी नथिंग बट 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा ये। ओके, लेट मी काउंट दिस कम्स आउट टू बी 5880। अब नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कमिटीज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, वो इसका सब्ट्रैक्शन बराबर है, बिकॉज इन दैट केस ए एंड बी विल नॉट बी सर्विंग टुगेदर ऑन द कमिटी। देयरफॉर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कमिटीज कितने होंगे वो, इसको माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज 8 में 8 16 9 9 5 16 6 20 20,580 Is this okay? 20,580 is the answer there. Is that clear? मुझे लगता है ये स्टार है, ये स्टार हाफ स्टार है, जो भी है आप देखो। Is that clear? Take the screenshot please.